Greetings, students. Welcome back to your English class. And children, today we'll start a new chapter, Mother's Day, by J.B. Priestley. Now, who was J.B. Priestley? John Byington Priestley, and he was born on 13 September 1894. He was an English novelist, playwright, screenwriter, broadcaster, and social commentator. His Yorkshire background is reflected in much of his fiction, notable in The Good Companions 1929 children, which first brought him to wide public notice. Many of his plays are structured around a time slip plot device in which a person or group of people seem to travel through time by unknown means, and he went on to develop a new theory of time which with different dimensions that link past, present, and future. Now, Mother's Day was written on 1950, and it is a satirical depiction about the real status of women in the family. Now, children, the following play is a humorous. What is humorous? Which is very funny. Okay, which is very funny. Portrayal of the status of women in the a portal of the status of the women in a family. Let's read on to see how Mrs. Pearson's family reacts when she tries to stand up for her own right. Now, see, there are characters given. So, children, when we read this chapter, we can also read it. It is a play kind of a chapter, right? So, we can actually act also. So, there are character Mrs. Annie Pearson, and she is a pleasant woman who feels nervous at times. Her excessive, she has a lot of love and care which has spoiled her family, and she has lost her self confidence in a way to fulfill her family's wishes, children. Now she wishes to take a stand of her own and earn respect and work for her feelings. ठीक है. Now George Pearson, who's the better half of Annie Pearson, that means he's the husband, okay, who does not respect his wife and children. When he does not respect his wife, he dominates the house, but he was mocked in the club by his friends. Next, we have Doris. She is 20 years old and she's the daughter of Mrs. Annie Pearson, children, and she never contributes to household work and doesn't care about herself. Okay, she has an affair with Charlie Spencer. Now we have Cyril Pearson, who's Annie's son and never sympathizes with her and never cares to do anything for her. He was equally demanding and also needs to change his attitude towards his mom. Lastly, we have Mrs. Fitzgerald. She's a fortune teller and she's a lady with strong determination, children, and helped Annie to stand and earn respect from her husband and children. She tries to succeeds in revamping the characters of her family. Now, children, let's say now this is the scene, okay, and this scene takes place in a house. Now, first we have to analyze how the room is. The action takes place in a living room of the Pearson's house in the London suburb. What is a suburb, children? It is the outskirts of a city, okay, where which a place which is outside the main city, okay, outlying area of city, and the time is the present, okay. The living room of the Pearson family, so you have to show one living room, and it's afternoon. It was comfortably furnished, much lived in room in a small suburb semi detached villa, and it is a semi detached villa. If necessary, only one door need to be used, but if it is better with two. Now they are saying कि उस रूम में एक हो तो ठीक है, वैसे दो डोर होने ज़्यादा अच्छा होगा. जो कि लेफ्ट साइड पे है वो कहाँ खुलता है, फ्रंट डोर एंड हैज स्टेयर्स, एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड बैक डोर. और दूसरा जो डोर है वो है राइट है, जो कि चिल्ड्रन कहाँ कहाँ खुलता है, किचन की तरफ,
ठीक है. There can be a muslin covered window in left wall and possibly on the right wall. तो लेफ्ट और राइट वॉल पे चिल्ड्रन क्या है, दो बड़े बड़े विंडोज हैं और उसमें मुस्लिन कवर कर्टन्स है. ठीक है. द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ प्लेस. तो फोर्थ प्लेस पे क्या है, एक फायर प्लेस जहाँ हम आग जला सकते हैं. देयर इज अ सेटी अप राइट. तो एक सेटी है, दैट इज अ सिटिंग थिंग. एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट. तो एक डाउन लेफ्ट में एक आर्म चेयर है, डाउन राइट में भी एक आर्म चेयर है. अ स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स. और एक छोटी सी टेबल है जिसमें दो चीज चेयर है. ऑन ईदर side of it stands at the center. Okay children, now this is the um, scene. Okay. Okay. Now, children, when the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए क्योंकि इवनिंग का टाइम है. एंड मिसेस पियर्सन एट द राइट, मिसेस फिट्जराल्ड एट द लेफ्ट. तो एक टेबल में बैठे हुए हैं कौन कौन, मिसेस फिट्जराल्ड और मिसेस पियर्सन. ठीक है. और वो कहाँ बैठे हैं, एक टेबल में बैठे हैं, सिटिंग ऑपोजिट, एक दूसरे के अगेंस्ट बैठे हैं, इन अ स्मॉल टेबल इन विच टू टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स विद which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. Now, उन्होंने क्या कर रखा है, दो चाय की कप हैं, उनमें सॉसर्स हैं और कार्ड्स फैले हुए हैं टेबल में, जिसमें से मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन का फ्यूचर बता रहे हैं. Now, Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. तो मिसेस पियर्सन कितनी साल की, 40s की है और चिल्ड्रन वो थोड़ी वर्रिड सी है. मिसेस फिट्जराल्ड इज ओल्डर, ठीक है, heavier and a strong and sinister personality. Sinister personality, very strong personality. She is smoking. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस. उन दोनों की जो वॉइस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग होनी चाहिए. मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट flurried sort of tone. Now, what is flurried is a nervous and very confused sort of. Okay, with a notch of suburban kookany perhaps. What is kookany? Children, kookany is the style of speaking. Okay, where in the east end of the London. Okay, where people, the style of speaking of people living in the east end of London perhaps. And Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish perhaps. Now, यहाँ पर हम देखते हैं कि there is a conversation between Mrs. Fitzgerald एंड मिसेस पियर्सन. और यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सोल स्वैप करेंगे. किसकी, मिसेस फिट्जराल्ड की जो सोल है वो मिसेस पियर्सन में आ जाएगी और मिसेस पियर्सन की जो सोल है वो मिसेस फिट्जराल्ड में आ जाएगी. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी यू कैन सी द पिक्चर राइट. नाउ लेट्स सी, इट्स मिसेस फिट्जराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स. अब मिसेस फिट्जराल्ड है वो क्या कर रही हैं, कलेक्ट कर रही हैं. क्या कलेक्ट कर रही हैं, कार्ड्स. एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन. उसने बोला मैं यही बता सकती हूँ. कुड इट बी गुड फॉर्चून, कुड इट बी बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ. नाउ उसने बोला कुछ अच्छा भी हो सकता है फॉर्चून और बुरा भी होता है, बट सब कुछ क्या है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है. मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज. बोला अपना माइंड डिसाइड करो क्या करना है. ठीक है. तो मिसेस पियर्सन बोलती यस थैंक यू मिसेस फिट्जराल्ड, आई एम सच ओब्लाइज्ड, आई एम श्योर. उससे बोला यस थैंक यू मिसेस फिट्जराल्ड, ठीक है, आई एम सच ऑब्लाइज. ठीक है. इट्स अ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलिंग लिविंग नेक्स्ट डोर. अब लिविंग नेक्स्ट डोर मतलब उनका नेबर थे, तो हमें पता चलता है मिसेस फिट्जराल्ड किसकी नेबर थी, मिसेस पियर्सन की नेबर थी. तो उसने बोलता है, वो बोलती है आई एम सच ऑब्लाइज, आई एम श्योर, इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर. बोले कितने वंडरफुल है ना एक रियल फॉर्चून टेलर हमारे घर के बगल में. डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू. बोले तुमने ये क्या करा है, ये ईस्ट में लर्न किया है. ये जो फॉर्चून टेलिंग जो तुम कर रहे हो ये ईस्ट में लर्न कर रहे. देखो ये दोनों है, मिसेस फिट्जराल्ड और मिसेस. नाउ चिल्ड्रन, अब मिसेस फिट्जराल्ड से बोलती, वो बोलती तुमने क्या करा है, तुमने ये ईस्ट से सीखा है. उसने यस आई डिड, 12 years I had of it.
with my old man rising to lieutenant quartermaster. She's like, हाँ मैंने 12 साल तक ये सीखा है और मेरे हस्बैंड ने भी ये सीखा है जो कि एक लिeutenant quartermaster है. लिeutenant quartermaster कौन होते हैं बेटा? नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स इन ब्रिटिश आर्मी होते हैं ये लोग. ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि 12 साल तक उन्होंने फॉर्चून टेलिंग सीखी है. उनके हस्बैंड क्या है? लिeutenant quartermaster है. ही लर्नड अ लॉट एंड आई लर्नड अ लॉट मोर. उसने बोला उन्होंने भी सीखा है बट उनसे ज़्यादा मैंने सीखा है. बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ? बोला अपना you'll make up your mind, you'll decide, Mrs. Pearson's dear. Put your foot down. Put your foot down means be very strict. Okay. um, put your foot down once and for all and be the mistress of your house and the boss of your family. उसे बोला है कि हाँ अपना डिसीजन फर्म लो और फिर देखो यू विल बी द मिस्ट्रेस, अपने घर की मिस्ट्रेस होगी और बॉस ऑफ दिस फैमिली होगी. नाउ मिसेस पियर्सन स्माइलिंग apologetically when you feel sorry. दैट्स easier said than done. बोलना तो बहुत आसान होता है बट करना बहुत मुश्किल होता है. बिसाइड्स आई एम सो फाउंड ऑफ देम का मतलब यहाँ पर कौन है? जॉर्ज, सिरियल और डोरिस. ठीक है, उनके बच्चे, उनके पति. Even if they are thoughtless and selfish, they don't mean to be. उन्होंने बोला कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बहुत फॉन्ड हूँ कि चाहे वो थॉटलेस और सेल्फिश हो. ठीक है, दे डोंट मीन टू बी. जैसे वो बोलते हैं वो बनना नहीं चाहते हैं तब तक मिसेस फिट्जजेराल्ड उनकी बात बीच में काट देते हैं. कटिंग इन, मे बी नॉट बट it would be better for them if they learned to treat you properly. बट ये अच्छा ही होगा उनके लिए अगर वो लर्न क्या करे, तुम्हें अच्छे से बातचीत करना है, तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना. मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे. ठीक है, नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल. हु इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल? ठीक है, अब वो पूछते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्पॉइल्ड है, हस्बैंड है, तुम्हारा बेटा या बेटी है? नोबडी or nobody. You think it does them good when you run after them all the time. बोले वो उनके लिए बहुत अच्छा है कि तुम उनके पूरा टाइम उनके पीछे भागती रहती हो. टेक दे ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस. और उनके ऑर्डर्स ऐसे लेती हो जैसे तुम क्या हो, एक सर्वेंट हो. स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्व्स. बोलते हैं हम क्या, तुम क्या करती हो, पूरे रात को एवरी नाइट घर पे रहते हो और वो सब इंजॉय करने जाते हैं. नेवर इन ऑल योर लाइफ. ठीक है, नेवर इन ऑल योर लाइफ, इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू. बेटे तुमने उन सबको बिगाड़ दिया. हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट. उन्होंने बोले कि जो हस्बैंड, सन्स और डॉटर्स होते हैं वो अपनी वाइव्स या मदर की केयर करते हैं. ठीक है, उनको नोटिस करते हैं, ना कि उनसे उनको ऑर्डर दे के और उनको एक मिट्टी की तरह ट्रीट करते हैं. आंट, डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू टोल्ड मी. ठीक है, उसमें बोला डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन. बोले तुम मुझे मत बताओ, ठीक है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है. नाउ मिसेस पियर्सन, शी इज़ टॉकिंग इन अ वेरी dubious manner which is very unsure manner. Okay, dubious means in an unsure manner. आई कीप ड्रॉपिंग हिंट्स. बोलते मैं उनको बताती हूँ, मैं एक हिंट भी ड्रॉप करती कि तुम मुझसे क्या कर रहे हो, अच्छे से बिहेव कर नहीं रहे हो. तो मिसेस फिट्जजेराल्ड बोलती, हिंट? ये क्या हिंट ड्रॉप करने की बात है? इट्स मोर दैन हिंट्स योर फैमिली नीड्स. मिसेस पियर्सन बोल रहे तुम्हारी फैमिली को तो हिंट से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है. नाउ मिसेस पियर्सन, ड्यूबलेसली इन एन अनश्योर मैनर. आई सपोज इट इज़ बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस फाइटिंग. ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर में लड़ाई हो.
एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम बट सम हाउ आई डोंट नॉट नो हाउ टू बिगिन. बोले मैं कई बार बोलती हूँ कि इनको समझाऊँ, बट मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ. फिर वो क्या करती है, अपनी घड़ी पे देखती हैं. शी ग्लांसेस एट अ वॉच एंड और एट अ क्लॉक. ओह गुड ग्रेशियस. ठीक है, फिर वो क्या बोलती हैं, ओह गुड ग्रेशियस. ओके चिल्ड्रन, ग्रेशियस मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज. लुक एट द टाइम, वो बोलती है देखो टाइम. Nothing ready, and they'll all be coming any minute and probably all in a hurry to go out again. बोलते मैंने कुछ बनाया नहीं, कुछ खाने को नहीं बनाया, अभी वो सब लोग आएंगे और 1 मिनट बाद सब कुछ अपना काम ख़त्म करके यहाँ से फिर वापस चले जाएंगे. Now, children, as she's about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. जैसी वो खड़ी उठने लगती है काम करने के लिए, तो मिसेस फ्रिट्जराल्ड क्या करती है, उनको नीचे खींच देती है. ठीक है, मिसेस फ्रिट्जराल्ड, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्फ फॉर वंस. बोला कभी तो उनको अपने आप वेट भी तो करना चाहिए उन लोगों को, और या तो फिर क्या करना चाहिए, उनको अपना काम खुद करना चाहिए. दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन. बोले यही तुम्हारी कमी है. स्टार्ट नाउ. ठीक है, शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड. वो दूसरी सिगरेट जलाती, एक जो ख़त्म होने वाली है. मिसेस पियर्सन, शी इज़ वेरी एम्बैरेस्ड, फीलिंग ऑकवर्ड. मिसेस फ्रिट्जराल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, but I just can't. And it's no use just you trying to make me. If I promise, sorry children, let me just go up. If I promise I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep my promise. तो बहुत embarrass होके बोलती है, I know you mean well, in fact. बोलते तुम, मुझे पता तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो, तुम चाहती हो कि ये सारी चीज़ें हो. I agree with you, but I just can't. बोले मैं ऐसे काम कर ही नहीं सकती हूँ. And it's of no use you trying to make me. बोले और कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो समझेंगे नहीं. If I promise you I would really have it out with them. I know I wouldn't be able to keep up my promise. Now Mrs. Frizan, then let me do it. तो फिर वो बोलती हैं, then let me do it. बोले अगर तुम अपना प्रॉमिस नहीं कीप कर सकती हो, अगर तुम उनको सुधार नहीं सकते हो, तो मैं सुधार देती हूँ. Now Mrs. Pearson, flustered, agitated, गुस्से में, oh no, थैंक यू वेरी मच मिसेस फ्रिट्जराल्ड, बट दैट वुडंट डू एट ऑल. बोले नहीं नहीं, तुम्हें कोई करने की ज़रूरत नहीं है. इट कुडंट बी पॉसिबल बी समबडी एल्स. बोलते नहीं नहीं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अब सोल एक्सचेंज करने की बात कर रहे थे. ठीक है, तो बोलती इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स. बोलते मैं कोई और बन ही नहीं सकती. दे वुड रिजेंट इट एट वंस एंड वुडंट लिसन. बोले वो पहले मना करेंगे और कभी नहीं सुनेंगे. ठीक है, and really I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She's looking apologetically across the table, smiling rather miserable. Mrs. Fitzgerald coolly, you haven't got the idea. Mrs. Pearson's bewildered. ठीक है, oh I'm sorry, I thought you asked me to let you do it. उन्होंने बोला कि मुझे लगा तो कि आप उनको सुधारोगी. ठीक है, तो बोलती मिसेस फ्रिट्जराल्ड बोलते आई डिड बट नॉट एज मी एज यू. बोले हाँ मैं उनको सुधारूंगी, बट मैं खुद नहीं होके तुम होकर. बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी. बट आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम मैं तो नहीं हूँ. देन मिसेस फ्रिट्जराल्ड कूलली, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज. यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू, बट ठीक है, उसने बोला हम क्या करेंगे, प्लेस चेंजेस करेंगे, अपनी अपनी बॉडीज़ को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे. ठीक है, नाउ मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल. वो बोलती ये तो मुश्किल है. हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट. मिसेस फ्रिट्जराल्ड बोलते तुम्हें कैसे पता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुमने कभी ट्राई किया है. मिसेस पियर्सन्स, नो ऑफ कोर्स नॉट. उसने बोला नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं कर रहा है. ठीक है, नाउ मिसेस फ्रिट्जराल्ड कूलली, आई हैव नॉट फॉर सम टाइम बट इट इज स्टिल ऑट टू वर्क. ठीक है, बोले मैंने करा है
बट नॉट फॉर, थोड़े टाइम पहले की, मतलब बहुत टाइम पहले किया था, ठीक है। वोंट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर व्हाट वी वांट टू, बोले बहुत देर तक नहीं, ठीक है, ज़्यादा देर तक तो नहीं, बट इतना कि ताकि जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए। लर्नट इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स वे देवर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, ठीक है। मैंने बोला ये सारी चीज़ें सोल सॉप करने की चीज़ें मैंने कहाँ सीखी हैं, ईस्ट में सीखी हैं। एंड ऑफ कोर्स वे देर आर ऑल अप टू दीज ट्रिक्स, ठीक है। शी होल्ड्स हर हैंड्स out across the table keeping the secret in her mouth. Give me your hand dear, तो वो अपना हाथ स्ट्रेच करती है और बोलती give me your hand, ठीक है। Then Mrs. Pearson dubiously in an unsure manner, well I don't know it, is it right, बोले मुझे पता नहीं क्या ये करना सही होगा जो हम कर रहे हैं। सोल क्या कर रहे थे वो, मिसेस फ्रिट्जराल की सोल मिसेस पियर्सन के अंदर आ जाएगी और मिसेस पियर्सन की सोल मिसेस फ्रिट्जराल पे आ जाएगी। तो बोलते क्या ये करना सही रहेगा, क्या हम जो ये कर रहे हैं वो करेक्ट है। नाउ चिल्ड्रन मिसेस फ्रिट्जराल, इट्स योर ओनली चांस, बोले ये लास्ट चांस है। गिव मी योर हैंड, बोले मुझे अपना हाथ दो। एंड कीप क्वाइट अ मिनट, और वो बोल रही है कि तुम क्या करो, अब चुप रहो। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, बोल किसी के बारे में मत सोचो। टेकिंग अ हैंड, नाउ लुक एट मी। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग अशाटटा डम अशाटटा लम अशाटटा लमन डम्मा बोना। दैट इज़ द, बोलते हैं ना ट्रिक जो बोलते हैं वो ये था, ठीक है। नाउ द लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, ठीक है। वो बोल रहे ये जो सीन है इसको ढंग से एक्ट करना पड़ेगा। वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज, अब यहाँ पर क्या हो गया, बॉडीज चेंज हो गई। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन बोथ women still grasping hands go lax, okay, go lax looking like they are dead, ठीक है, as if the life were out of them. देन बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को स्वैप कर देते हैं। ईच मस्ट ट्राई टू अडेप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, और एक दूसरे की जैसे वो हरकत करते हैं, जैसे वो चीज़ें करते हैं, वैसे ही उन दोनों को अडेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। So now Mrs. Pearson is bold and dominating and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. Okay, children, thank you. Let us next part I will make you read. I will make you understand what is happening in the next part. Thank you, children.